Assalamu alaikum. We will discuss about classroom management. In this presentation, I will discuss about the definition of classroom management, types of classroom management, factors affecting classroom management, mistakes we make while managing the class, characteristics of effective teacher, and strategies for good classroom management. Here is my little introduction. I am an ardent chemistry teacher with working experience of more than 4 years at secondary level in Shehroz Grammar High School. I have also served as discipline in charge in the same institution. My formal education is from University of Gujarat, Hafiz Hayat campus, and it's ongoing as MS from University of Sialkot. I am not a professional trainer nor a certified one, but I am genuinely concerned about promoting digital literacy and critical thinking in my schools. And I promise I will try my best to guide you about how to manage your classroom well in a way to promote learning environment. So let me start our presentation. First of all, we will discuss about classroom management. Different researchers different researchers defined the classroom management in a different way. Evertson and Weinstein in 2006, they defined classroom management is an umbrella term. Umbrella term means it is a broad term that covers teachers' action to establish a learning environment which support development of children's academic and social emotional skills. It means that classroom management involve teachers' action कि टीचर्स क्लासरूम मैनेजमेंट में इस तरह से रोल प्ले करता है कि वो एक लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है और वो लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो ना सिर्फ स्टूडेंट्स की एकेडमिक डेवलपमेंट में टेक पार्ट करता है बल्कि उनकी सोशल और इमोशनल स्किल्स को भी डेवलप करता है. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स words and many actions that a teacher apply to keep the classroom running smoothly so that teaching and learning can work efficiently. 2009 में ग्रोव एक रिसर्चर है and he defined classroom management as a combination of rule words and many actions. So classroom management में teachers rule बनाते हैं, कुछ actions perform करते हैं और वर्ड्स मैटर्स अलॉट. उसके ज़रिए वो क्लासरूम को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज करते हैं, स्मूथली रन करते हैं ताकि स्टूडेंट्स उनकी टीचिंग और लर्निंग जो है दोनों एफिशिएंटली काम कर सकें. द बेसिक एम ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर इन क्लासरूम वेयर मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स. बेसिक एम क्या है क्लासरूम मैनेजमेंट का कि टीचर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे क्लासरूम में जहाँ पे मीनिंगफुल लर्निंग हो, जहाँ पे स्टूडेंट्स लर्न करें, जहाँ पे स्टूडेंट्स क्रैम ना करें और ऐसा इन्वायरमेंट जनरेट करें, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ पे हर तरह के स्टूडेंट क्लासरूम में जो डल स्टूडेंट्स हैं, बिलो एवरेज हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट एफिशिएंटली काम करे और मीनिंगफुल लर्निंग करें. So different teachers adopt different ways to manage the classroom. There are 4 types of classroom management. The first one is authoritarian. Authoritarian classroom management technique या strategy. The teacher just prepared the lesson. Students are just asked to sit at the chairs. और बच्चे जो हैं वो बस खामोशी से अपनी चेयर्स पे बैठ जाते हैं, अपनी असाइंड सीट्स पे बैठ जाते हैं. टीचर अपना लेक्चर प्रिपेयर करता है और वो लेक्चर स्टूडेंट्स को डिलीवर करता है. फुल ऑन टीचर का कंट्रोल है क्लास पे. कोई स्टूडेंट जो है बोल नहीं सकता. स्टूडेंट्स डू नॉट हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच. स्टूडेंट्स डू नॉट हैव फ्रीडम ऑफ क्वेश्चनिंग फ्रॉम टीचर्स. सो इस क्लासरूम मैनेजमेंट के वेज में क्लास जो है वो खामोश तो है, टीचर ने अपना लेक्चर तो डिलीवर किया है, लेकिन स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो है. और जब स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो होगी तो फिर ये लेस इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक होगी. द सेकंड इज़ अथॉरिटेटिव. अथॉरिटेटिव में टीचर का क्लासरूम के ऊपर कंट्रोल भी है, स्टूडेंट्स जो है इसमें इन्वॉल्व भी हैं और टीचर्स के साथ वो थोड़ा बहुत फ्रैंक भी हैं. उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है कि वो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं. उन्हें फ्रीडम ऑफ एक्शंस भी है कि वो टीचर के साथ अपने जो है वो उसको शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयरिंग कर सकते हैं. और टीचर एट द सेम टाइम क्लास के ऊपर कंट्रोल भी रख रहा है
और क्लास की इन्वॉल्वमेंट को भी इंश्योर कर रहा है। सो इस क्लासरूम मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा होगी और स्टूडेंट सीखेंगे भी। द नेक्स्ट इज परमिसिव क्लासरूम मैनेजमेंट, जिसमें द टीचर्स जस्ट टीच टू पे द बिल्स। परमिसिव टीचर्स जो हैं दे आर जस्ट डूइंग देयर टीचिंग या दे आर जस्ट टीचिंग टू पे द बिल्स। उनको कोई जो है वो केयर नहीं है स्टूडेंट्स की, दे डोंट केयर अबाउट स्टूडेंट्स, दे डोंट दे डोंट हैव कंसर्न्स अबाउट स्टूडेंट्स। उन्हें नहीं पता कि हमारे स्टूडेंट के लिए क्या बेहतर है, वो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, और ना वो अपना लेक्चर प्रिपेयर करके आते हैं। दे जस्ट कम एंड सिट इन द क्लास एंड लेट स्टूडेंट्स टॉक एंड इन्जॉय। तो इस तरह से वो अपना जो टाइम गुजार देते हैं। तो टीचर स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, ज़ीरो है, टीचर इन्वॉल्वमेंट कम है। सो ये लेस इफेक्टिव, सबसे जो लीस्ट इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक है वो ये है। नेक्स्ट है इंडल्जेंट। इंडल्जेंट में ये है कि टीचर्स कम टू द क्लास वेल प्रिपेयर्ड। वो अपना लेक्चर प्रिपेयर करके आया है, लेकिन उसका क्लासरूम के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं है, बट ही और शी इज़ हाईली कंसर्न्ड अबाउट स्टूडेंट्स। उसे स्टूडेंट्स के गोल्स के बारे में, स्टूडेंट्स के फ्यूचर के बारे में शी केयर्स अबाउट दैट। तो इसमें स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज़ को फील करते हैं कि टीचर केयर अबाउट अस, और वो उसमें इन्वॉल्वमेंट भी करते हैं, लेकिन वो उसके साथ साथ इंजॉय भी करते हैं। टीचर का क्योंकि क्लास के ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, एक फ्री इन्वायरमेंट उनको दिया जाता है। सो इसमें भी स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट है। So authoritative and indulgent, these two strategies are like that कि यहाँ पर स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी और स्टूडेंट सीखेंगे। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट मीन्स फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्शन, freedom of sharing the problem with teacher. So this is effective classroom management. अगर आप कहते हैं कि एक ऐसी क्लासरूम जहाँ पे टीचर लेक्चर दे रहा है और स्टूडेंट खामोशी से सुन रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल एक पिन ड्रॉप साइलेंस है, स्टूडेंट लेक्चर में इन्वॉल्व नहीं है, वो क्वेश्चन आंसर नहीं करे, दे आर जस्ट स्केयर्ड ऑफ टीचर, तो डैट इज़ नॉट अ गुड क्लासरूम। बिकॉज साइलेंस इज़ ओनली इन ग्रेवयार्ड। जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जो है डिस्कशंस होंगी, और जिस क्लासरूम में सबसे ज़्यादा लेक्चर के दौरान डिस्कशंस हों, क्वेश्चन आंसर हों, टीचर स्टूडेंट से पूछे और स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रीली टीचर से आस्क करें, तो दैट इज़ अ गुड एंड इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट. So there are certain factors that affect classroom management. Some are physical factors. Classroom management, classroom infrastructure matters a lot. Classroom sitting arrangement matters a lot. Sometime हम sitting arrangement ऐसे कर देते हैं क्लास में कि टीचर जो है वो हर स्टूडेंट को अप्रोच नहीं कर सकता। जब टीचर की अप्रोच स्टूडेंट्स तक नहीं होगी, जब टीचर क्लास में वॉक नहीं कर सकेंगे प्रॉपरली, so they cannot manage the class well. So these come in organizational factor and classroom climate जो है वो disturbing होता है। टीचर ने classroom climate जो है वो इतना ज़्यादा disturbing create किया होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो हम ही क्लासरूम में discipline problems create करते हैं। Physical and architectural features aggregate student characteristics, school and classroom context. तो ये ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में आएगा। दूसरा टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि टीचर्स जो हैं वो क्लासरूम को मैनेज करने में अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, टीचर्स जो हैं वो शाउट कर रहे हैं, टीचर्स जो हैं वो डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स जो हैं उनको समझ नहीं रहे, उनकी डेप्थ में नहीं जा रहे कि वाई स्टूडेंट्स आर बिहेविंग लाइक दैट। वो जस्ट आते हैं और अपना लेक्चर दे रहे हैं और स्टूडेंट को स्कॉल्ड करके चले जाते हैं। सो दीज फैक्टर्स मैटर्स अ लॉट इन मैनेजिंग द क्लासरूम. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट मिस्टेक्स वी मेक व्हाइल मैनेजिंग द क्लासरूम, कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स दैट वी मेक व्हाइल मैनेजिंग द क्लासरूम, लाइक लैक ऑफ रिलेशनशिप बिल्डिंग विद स्टूडेंट्स. टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करते, टीचर्स स्टूडेंट की केयर नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, उन्हें वैल्यू नहीं करते, और वो स्टूडेंट्स को डरा के रखेंगे। जब तो फिर स्टूडेंट जो है वो उनसे ना अपनी प्रॉब्लम शेयरिंग कर सकेंगे, जब वो अपनी प्रॉब्लम टीचर के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे कि वो उस प्रॉब्लम को आगे लेके चलते जाएंगे और मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। सो स्टूडेंट के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, स्टूडेंट को ये फील करवाना कि यू केयर अबाउट देम, you care about their future,
यू केयर अबाउट देयर कंसर्न्स, अबाउट देयर वैल्यूज़। तो जब ये चीज़ होगी तो हमारी क्लास मैनेज हो जाएगी। लैक ऑफ प्लानिंग, नॉट मैक्सिमाइजिंग यूज़ ऑफ टाइम। टीचर प्लानिंग जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर रहे। टीचर प्लानिंग में ये चीज़ नहीं डाल रहे कि स्टूडेंट्स को हम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। लाइक अगर टीचर ने प्लानिंग की है और उसका जो लेक्चर है वो 10 मिनट्स में कवर हो गया है, बाकी जो लेक्चर के 30 मिनट्स हैं या 25 मिनट्स हैं, 30 मिनट्स हैं, जितना भी टाइम है, अब टीचर को समझ नहीं आता कि हाउ आई यूज़ दैट टाइम। अब वो क्या, इस तरह से फिर क्लास में डिस्टर्बेंस होगी। सो टीचर शुड प्लान हर लेसन लाइक दैट कि जिसमें एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हों। अगर उसको एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो वो उस एक्स्ट्रा टाइम को भी कंज्यूम करे। शाउटिंग जो ज़्यादातर टीचर्स करते हैं, और जब वो शाउटिंग करते हैं तो वो क्लासरूम को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एक दिन शाउटिंग करेंगे स्टूडेंट चुप कर जाएंगे, दूसरे दिन शाउटिंग करेंगे तब भी स्टूडेंट चुप कर जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन जब वो शाउट करेंगी तो स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये टीचर की आदत है, वो उस आदत को अपना लेंगे और फिर वो भी शाउट करना शुरू कर देंगे, वो भी क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू कर देंगे। तो शाउटिंग जो है वो मैटर नहीं करती, वो बहुत मैटर करती है। जैसे कहा जाता है कि टीचर्स शुड बिहेव लाइक थर्मोस्टेट, नॉट लाइक थर्मोमीटर। कि टीचर्स जो हैं इनको थर्मोमीटर की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, जिसका जो टेम्परेचर है वो डिग्रीज में बढ़ता जाता है, बल्कि उसको थर्मोस्टेट की तरह बिहेव करना चाहिए, जो बिल्कुल कंसिस्टेंट, बिल्कुल नॉर्मल रहे, बिल्कुल डिसिप्लिन रहे, शाउट ना करे, रिलैक्स्ड रहे। Inconsistent application of rules, consequences, and behavior management, not checking your biases. Not checking your biases mean कि टीचर्स जब फेवरेटिज्म पे आ जाते हैं, वो जब बस जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो यही समझते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ाने आए हैं, बल्कि जो डल और नील स्टूडेंट्स हैं उनके साथ टीचर का कोई कंसर्न नहीं है, वो परफॉर्म कर रहे हैं नहीं परफॉर्म कर रहे, टीचर डोंट केयर अबाउट दैट। तो जब इस तरह की बाइसनेस और फेवरेटिज्म क्लास में होगी तो ये फिर उन स्टूडेंट्स को इस तरह से फ्रस्ट्रेट करेगी और फिर क्लासरूम को मैनेज करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। कॉलिंग फॉर हेल्प, I have seen this mistake from teachers many times कि they just go to the head for help, कि उनसे क्लासरूम मैनेज नहीं हो रही, क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा, तो दे जस्ट गो टू द हेड फॉर हेल्प। तो ये स्टूडेंट्स को जो है वो चीज़ एक स्टूडेंट को स्टिग्मेटाइज करती है कि टीचर जो है ये इसमें इस टीचर में इतना ज़्यादा स्टेमिना या इतनी ज़्यादा एबिलिटी नहीं है कि ये हमें कंट्रोल कर सके, बल्कि ये खुद हेल्प लेने के लिए किसी सीनियर अथॉरिटी के पास जा रही है। तो ये फिर हमें क्या पढ़ाएगी, ये क्या मेंटेन करेगी हमें। तो स्टूडेंट फिर यही करते हैं कि वो शोर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि टीचर विल गो फॉर द हेल्प, और टीचर जब हेल्प के लिए जाएगी, अथॉरिटी सीनियर आएगी, तो फिर हम चुप कर जाएंगे। सो इस तरह से क्लासरूम मैनेजमेंट का आधा टाइम जो है वो कॉलिंग फॉर हेल्प में चला जाता है। सिटिंग अरेंजमेंट, एज वी डिस्कस्ड इट अर्लियर, कि सिटिंग अरेंजमेंट मैटर्स अ लॉट। अवॉइडिंग स्टूडेंट नीड्स, टीचर सेंटर्डनेस, कि टीचर अपना लेक्चर इस तरह से डिज़ाइन कर रहा है कि हम स्टूडेंट्स की जो नीड्स हैं उनको अवॉइड कर रहे हैं। वी डोंट नो व्हाट आवर स्टूडेंट नीड। अब हमारे आजकल के 21st सेंचुरी स्टूडेंट्स जो हैं, दे जस्ट यूज टू मैनी ऐप्स, उन्हें हमसे ज़्यादा ऐप्स का पता है, उन्हें हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का पता है। अब जब हम अपना लेक्चर सीधा सीधा प्रिपेयर करेंगे, हम स्टूडेंट्स को क्रैम करवाएंगे, तो फिर इस तरह से वो उस लेक्चर में अच्छा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जब आप स्टूडेंट्स की नीड्स के मुताबिक अपना लेक्चर प्रिपेयर करें, उसमें एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करें। अगर स्टूडेंट बोर हो चुके हैं तो स्टूडेंट की ज़रूरत को समझें, उनके माइंड सेट को समझें। अगर स्टूडेंट बोर हो गया तो आप किसी लर्निंग एक्टिविटी में उन्हें इंगेज कर लें। आप अपने लेक्चर को छोड़ दें, आप उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी उन्हें करवा लें, कोई क्रिटिकल थिंकिंग उन्हें करवा लें। तो इस तरह से वो स्टूडेंट्स की बोर्डम ख़त्म हो जाएगी और स्टूडेंट क्लास में अच्छा बिहेव करना शुरू कर देंगे। लैक ऑफ केयर एंड रिस्पेक्ट, हम ये स्टूडेंट से रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो जब हम स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम उन्हें डरा धमका के रखेंगे, तो वो हमसे डर तो जाएंगे लेकिन वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनमें ऑनरशिप नहीं आएगी। तो जब टीचर्स में ये लैक ऑफ केयर और रिस्पेक्ट आता है तो ये भी क्लासरूम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग,
जैसा हमने पढ़ा हम वैसा ही स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं. वी आर नॉट treating our student as 21st century students, we are treating them as 90s student. तो जब लैक ऑफ एक्टिविटीज़ होंगे तो फिर भी स्टूडेंट जो है वो बोर होंगे, और जब वो बोर होंगे तो वो डिसिप्लिन प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और क्लासरूम अच्छी तरह से मैनेज नहीं होगी. डंस कैप. डंस कैप एक पॉलिसी, एक टेक्निक है. एक रिसर्च की गई है जिसमें 11 कर्नल्स एक्सप्लेन किए गए हैं टू मैनेज द क्लास. कर्नल्स मीन स्ट्रेटजीज टू मैनेज द क्लास. तो उसमें डंस कैप एक स्ट्रेटजी थी कि टीचर्स ये मिस्टेक करते हैं. डंस कैप मीन कॉलिंग द स्टूडेंट स्टूपिड, कि आप हो ही स्टूपिड, आपको तो तरीका ही नहीं है बोलने का, आपने हर टीचर को तंग करके रखा है. जब आप स्टूडेंट को ये चीज़ें करेंगे, उनके साथ ऐसे वर्डिंग यूज़ करेंगे, तो फिर स्टूडेंट जो है वो स्टिग्माटाइज होंगे, फिर स्टूडेंट में नेगेटिविटी आएगी. फिर स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमें टीचर ऐसा ही कह रहे हैं तो इट मीन्स कि हम ऐसे ही हैं और हम ऐसे ही रहेंगे, हम ज़्यादा इस टीचर को तंग करेंगे. अगर आप उन्हीं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, इंकरेज करते हैं, तो फिर क्लासरूम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी. बीइंग अथॉरिटेरियन, कि हम अथॉरिटेरियन ही रह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट हमारी माने, हम स्टूडेंट्स की नहीं माने. हम ये समझते हैं कि वी आर ऑलवेज राइट एंड स्टूडेंट्स आर नॉट राइट, स्टूडेंट्स आर रॉन्ग. तो ये जब अथॉरिटेटिव हम रहेंगे तो क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी. आपके स्टूडेंट खामोशी से बैठ तो गए हैं, वो आपको सुन तो रहे हैं, लेकिन वो परफॉर्म नहीं करेंगे, उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी. जब इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो आपकी इवैल्यूएशन ज़ीरो होगी, और ज़ीरो इवैल्यूएशन जो है ये सबसे लीस्ट क्लासरूम मैनेजमेंट है. नो रूल्स, हम रूल्स डिज़ाइन नहीं करते, और जब भी हम रूल्स डिज़ाइन करें वी शुड डिज़ाइन द रूल्स अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स कंसर्न. हम स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन के साथ रूल्स डिज़ाइन करें, क्योंकि जब स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करके रूल डिज़ाइन करवाएंगे क्लास के, तो फिर उन्हें पता होगा कि हमने ये रूल बनाए एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज रूल्स, तो वो उन रूल्स को फॉलो करेंगे. जब कोई रूल ही नहीं होगा क्लास में, जब स्टूडेंट्स के हर स्टूडेंट पे, और वो रूल हर स्टूडेंट पे अप्लाई करें, तो जब रूल्स नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासरूम में अच्छा बिहेव नहीं करेंगे और मैनेजमेंट नहीं आएगी, डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स आएंगी. लैक ऑफ कमिटमेंट, कि टीचर्स जस्ट टीच टू पे द बिल्स, एज ए डिस्कस्ड इट अर्लियर, कि उनमें कमिटमेंट नहीं है, उनमें अपने प्रोफेशन के साथ कमिटमेंट नहीं है. दे जस्ट चोज देयर प्रोफेशन एज द थर्ड चॉइस और नो चॉइस, कि जस्ट उन्होंने जैसे मैं फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में फर्स्ट नंबर पे है. द रीज़न फॉर डैट इज़ कि जब वो टीचर की हायरिंग करते हैं तो उसमें दो चीज़ें देखते हैं. एक तो वो हायर करते हुए पोस्ट ग्रेजुएशन मस्ट है, कि टीचर शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट. दूसरा ये कि वो उस टीचर को हायर करते हैं जिसके लिए टीचिंग जो है वो फर्स्ट चॉइस है. टीचिंग इज़ द ओनली चॉइस, नॉट फर्स्ट, नॉट सेकंड, नॉट थर्ड, ओनली चॉइस है. हम यहाँ पे जो टीचर्स हैं लाइक पाकिस्तान में यही है कि वो कह देंगे कि हम घर में फारिग हैं तो चलें टीचिंग कर लें, चार पैसे कमा लें, टीचिंग कर लें, या हम डॉक्टर नहीं बने तो हम टीचर बन जाते हैं. तो फिर उनमें कमिटमेंट की कमी आ जाती है. जब वो अपने प्रोफेशन के साथ कमिटेड नहीं होंगे, अपने स्टूडेंट्स के साथ कमिटेड नहीं होंगे, और जब वो अपने स्टूडेंट्स के साथ कमिटेड नहीं होंगे, वो जस्ट आएंगे, स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे और चले जाएंगे, तो फिर स्टूडेंट जो है वो डिसिप्लिन प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. लैक ऑफ एप्रिसिएशन एंड मोटिवेशन, मोर पनिशमेंट लेस मोटिवेशन, कि हम अगर स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहे हैं, हम उन्हें इनकरेज कर रहे हैं, हम उन्हें इंस्पायर कर रहे हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम उन्हें रिवॉर्ड दे रहे हैं, उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो हम उस पर उन्हें कोई प्राइज़ दे रहे हैं, तो फिर हम उन्हें कभी पनिश कर भी दें तो वो पनिशमेंट स्टूडेंट को इतनी ज़्यादा वो अपने दिल पे नहीं लेते उस पनिशमेंट को. वो कहते हैं कि दिस टीचर केयर्स अबाउट अस, ये टीचर हमें रिवॉर्ड भी करती है, तो आज इसने हमें पनिश किया है तो ये बिल्कुल हमारे ही फ़ायदे के लिए किया है. लेकिन हम टीचर्स गलती क्या कर जाते हैं कि हम पनिश ज़्यादा करते हैं, मोटिवेशन काम करते हैं स्टूडेंट्स की, तो इस वजह से वो स्टूडेंट अनोइंग हो जाते हैं. जब वो स्टूडेंट्स अनोइंग होंगे तो क्लासरूम डिसिप्लिन डिस्टर्ब होगा. जैसे एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है, गिव द बॉय अ फेस सो एज नॉट टू एम्बेरस हिम, कि आप गिव द बॉय अ फेस मीन हेल्प, कि आप जब स्टूडेंट की हेल्प करते हैं, उसको एम्बेरस नहीं करते क्लास में,
तो फिर वो स्टूडेंट क्लास में इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो स्टूडेंट जान चुका है कि जो टीचर है ये मेरी रिस्पेक्ट कर रही है, ये टीचर मुझे वैल्यू कर रही है। सो अब मैंने इस टीचर का काम करना है और मैंने क्लास में अच्छे तरीके से रहना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। मलेशिया के एक स्कूल में रिसर्च की गई कि एक टीचर है 1958 में उसकी जॉब हुई गवर्नमेंट स्कूल में। 1995 में शी गॉट रिटायर्ड, और जब वो रिटायर हुई तो उसके बाद उसने एक प्राइवेट प्राइमरी स्कूल में जॉब करना शुरू कर दी। अब ये देखा गया कि उसकी क्लास में हर स्टूडेंट जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, फ्रॉम डल टू ब्रिलियंट। हर स्टूडेंट हैप्पी मूड में है, हर स्टूडेंट ने उस क्लास को ऑन किया हुआ है। वो ना ही सिर्फ उसकी क्लास में बल्कि उसके बाद भी वो डिसिप्लिन रह रहे हैं। तो उसमें भी प्रॉपर रिसर्च की गई, उनके स्टूडेंट से इंटरव्यू किया गया, उनके कोलीग से इंटरव्यू किया गया, उनको ऑब्जर्व किया गया प्रॉपर एक वीक के लिए कि ऐसा क्या है इस टीचर में कि इसके स्टूडेंट इतने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, इतने ज़्यादा खुश हैं, इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। तो उस टीचर में 6 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी गई। जो फर्स्ट 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उस टीचर की ही हैं। लविंग द प्रोफेशन, कि वो टीचर अपने प्रोफेशन से प्यार करती है। जब आप अपने प्रोफेशन से प्यार करते हैं तो आप फिर उस चीज़ में इनोवेशन लाने की कोशिश करते हैं। आप फिर कहते हैं कि आई एम लविंग माई प्रोफेशन, तो जिनको मैं पढ़ा रही हूँ वो भी जो है वो इस प्रोफेशन से प्यार करना शुरू कर दें। तो फिर वो क्या करेंगे, वो उसमें इनोवेशन लाना शुरू कर देंगे, वो उसके लिए जो है हार्ड वर्क करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से जब वो अपने प्रोफेशन से प्यार करेंगे तो वो बच्चों से भी प्यार करेगी, बच्चों की भी केयर करेगी। तो इस तरह से जब वो बच्चों की केयर करती थी तो बच्चे जो हैं उनकी क्लास में ओनरशिप फील करते थे और वो अच्छा परफॉर्म करते थे। गोइंग बियॉन्ड द लेसन टाइम। गोइंग बियॉन्ड द लेसन टाइम मीन्स कि अगर वो कोई लेक्चर किसी टॉपिक पे डिलीवर कर रही है तो शी इज़ जस्ट नॉट फॉलोइंग द बुक। वो लेसन को या वो बुक को फॉलो नहीं कर रही, वो बल्कि लेसन टाइम से बियॉन्ड जा रही है। वो उसके रिलेटेड स्टूडेंट्स को फन फैक्ट्स बताती, वो उसके रिलेटेड स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करती, वो उसके रिलेटेड स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती और वो फिर उसके लेसन को बहुत ध्यान से सुनते। क्रिएटिंग सूटेबल येट कंफर्टेबल फिजिकल क्लासरूम इन्वायरमेंट। उसने अपने क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो इस तरह से बनाया था कि एवरी स्टूडेंट फील कंफर्टेबल इन दैट क्लासरूम। उन्होंने क्लासरूम को इस तरह से डेकोरेट किया था कि स्टूडेंट जब जो ही क्लासरूम में एंटर होते थे उनके लिए प्रेजिंग वर्ड्स पेस्ट किए जाते हैं, ताकि स्टूडेंट जो हैं उनको मोटिवेशन मिले और स्टूडेंट को क्लास में ऑनरशिप फील हो और वो बेस्ट परफॉर्म करें। प्रैक्टिसिंग द आर्ट ऑफ स्केप होल्डिंग। द आर्ट ऑफ स्केप होल्डिंग मीन द आर्ट ऑफ स्पोर्टिंग। वो स्टूडेंट को सपोर्ट करती, अगर शी इज़ डिलीवरिंग द लेक्चर और स्टूडेंट जो है वो अटेंटिवली नहीं सुन रहा, तो वो उस स्टूडेंट को स्कॉल्ड नहीं करती या उस स्टूडेंट को डिग्रेड नहीं करती कि व्हाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, या उस स्टूडेंट को खड़ा ना करती या पनिश ना करती, बल्कि वो उसको बोर्ड पे बुलाती और उनको प्रॉपर सपोर्ट करती और उनको जो है इस तरह से लेक्चर की समझ आ जाती कि अगर कोई स्टूडेंट बोर्ड पे आ रहा है एंड शी या ही डोंट नो कि टीचर ने क्या पढ़ाया है, टीचर ने क्या समझाया है, तो वो वहाँ पर ही उसे खड़ा करके उसकी हेल्प करती, उसे थोड़ा बहुत स्टेप्स बताती, उसे थोड़ा बहुत आइडिया देती। इससे स्टूडेंट्स जो हैं वो परफॉर्म कर लेते थे और इस तरह से उनकी सेल्फ इस्टीम इम्प्रूव हो जाती थी। इस तरह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता था। वीविंग वैल्यूज लीडरशिप एंड थिंकिंग स्किल्स इनटू द लेसन। वो अपने लेसन में थिंकिंग स्किल्स डाल दी, क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप डाल दी और वैल्यूज़, कि स्टूडेंट्स को वैल्यूज़ जो हैं वो देना बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन वैल्यूज़ स्टूडेंट्स में डिलीवर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिलीवर द वैल्यूज़, यू हैव टू अडॉप्ट दोज वैल्यूज़। अगर हम कहते हैं कि आवर स्टूडेंट्स बिकम डिसिप्लिन, तो वी हैव टू बी डिसिप्लिन फर्स्ट। अगर हम चाह रहे हैं कि आवर स्टूडेंट्स बिकम पंक्चुअल, तो वी हैव टू बी पंक्चुअल फर्स्ट। तो वो ये सारा कुछ पहले खुद प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके स्टूडेंट जो है उनको देख के प्रैक्टिस करते। क्रिएटिंग क्लासरूम रूल्स एंड बाउंड्रीज टू स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। वो स्टूडेंट के इन्वॉल्वमेंट के साथ क्लासरूम में रूल्स और बाउंड्रीज क्रिएट करती, और ऐसा नहीं है कि वो क्लासरूम में स्टूडेंट्स को पनिश नहीं करती थी, वो रूल्स डिज़ाइन करती, स्टूडेंट्स के कंसर्न के साथ करती और फिर साथ में ये भी कहती कि अगर ये रूल्स ब्रेक हुए तो फिर हम क्या पनिश करें। फिर स्टूडेंट्स खुद बताते हैं कि यू कैन पनिश अस लाइक दिस, और जब उन्हें पता है कि हमें रिवॉर्ड भी मिलना है और उस पर रिवॉर्ड दिया जाता उन्हें,
और रिवॉर्ड भी मिलना है और फिर हमें पनिशमेंट भी होना है। उनकी ब्रेक ऑफ कर दी जाती है, उनके मिनट्स माइनस कर दिए जाते हैं, उनके मार्क्स माइनस कर दिए जाते हैं। इस तरह की पनिशमेंट थी। इस तरह की पनिशमेंट नहीं थी कि वो स्टूडेंट को स्कॉल्ड कर रही हैं, उनको मार रही हैं, उनको फिजिकली टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर कर रही हैं। ये पनिशमेंट जो है उनकी पॉलिसी में ही शामिल नहीं है। सेल्फलेसनेस, हर गोल इज़ हर स्टूडेंट्स अचीवमेंट, नॉट हर। जब आप अपने प्रोफेशन में सेल्फलेस हो जाते हैं, और आप तभी होते हैं जब आप अपने प्रोफेशन से प्यार कर रहे हैं, जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहे हैं कि हमने अपने स्टूडेंट को आगे लेके जाना है, हमने सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट को कामयाब नहीं करना, हमने जो नील स्टूडेंट, डल स्टूडेंट है, हमने उसे भी आगे लेके जाना है। तो जब आप में ये सेल्फलेसनेस आएगी तो आपके स्टूडेंट खुद ब खुद जो है वो आपकी बात को समझना और सुनना शुरू कर देंगे। हेल्पफुलनेस, वो स्टूडेंट्स की हेल्प करती, वो स्टूडेंट्स को उनके फर्नीचर अरेंज करने में उनकी हेल्प करती, वो स्टूडेंट्स को उनका होमवर्क कंप्लीट करने में उनकी हेल्प करती। अगर उनका होमवर्क डॉजर वो चेक कर रही हैं और स्टूडेंट ने वो कंप्लीट किसी ने नहीं किया, तो वो ये नहीं कहती कि वाई यू डिड नॉट डू दैट, या आपको आपने ऐसा क्यों नहीं किया, बल्कि वो उस स्टूडेंट को कहती कि इट्स ओके, अगर आप अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो हम छुट्टी के बाद एक्स्ट्रा टाइम में होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं। वो उनकी फुल ऑन हेल्प करती, और जब ये हेल्प करती तो स्टूडेंट जो हैं उनको ये फील होता कि ये हमारे टीचर जो हैं ये हमारे बारे में ही सोच रही हैं। तो फिर वो स्टूडेंट उस टीचर का अच्छे तरीके से उस टीचर की क्लासरूम में बिहेव करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी करेक्टरिस्टिक्स यही है, इंथुजियास्टिक, आपको अपने प्रोफेशन के साथ पुरजोश होना चाहिए। आप अपने टीचिंग के साथ जो आप पढ़ा रहे हैं, द करिकुलम इज सो मच नेसेसरी रॉ मटेरियल, बट वार्मथ इज द वाइटल एलिमेंट फॉर ग्रोइंग प्लांट एंड फॉर सोल ऑफ चाइल्ड। कि आप करिकुलम तो जस्ट एक रॉ मटेरियल है, वो आपको दिया क्या है, लेकिन अगर आप उस करिकुलम में अपनी इंथुसियाज्म, अपनी वार्मनेस पैदा कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, वो एक ये एलिमेंट वाइटल एलिमेंट है, तो फिर आपके बच्चे की जो सोल है वो भी ग्रो करेगी, आपका जो पौधा है वो भी ग्रो कर जाएगा। अगर आप उस करिकुलम में अपनी फुल अटेंशन डाल देते हैं तो वो करिकुलम जो है ना जस्ट बच्चे को करवाएगा, बल्कि वो बच्चा उसे समझेगा, और जब बच्चा समझ जाएगा उस करिकुलम को तो फिर वो कामयाब होगा। इम्ब्रेस द चेंज, जो अफेक्टिव टीचर्स होते हैं वो चेंज से घबराते नहीं हैं, बल्कि उसको एम्ब्रेस करते हैं, वो नई नई चीज़ें सीखते हैं। दे आर ऑलवेज हंग्री फॉर लर्निंग, बल्कि वो नई नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं, वो इनोवेटर्स होते हैं, और जब वो इनोवेटर्स होंगे तो वो इनोवेटर्स बनाएंगे। दे आर क्रिएटिव, दे आर रोल मॉडल, जैसे हमने कहा कि रोल मॉडल हों। इस्लाम में ये हदीस है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लम बनाकर भेजा गया है। तो मुअल्लम कौन क्या है? जो लोगों को सिखाए, और वो कैसे सिखाते थे? वो अपने एक्शंस के ज़रिए सिखाते थे। अगर वो कह रहे हैं कि सच बोलें तो वो खुद सच बोलते थे। अगर वो कह रहे हैं कि अच्छे काम करें, किसी के साथ अच्छा रहें, तो वो खुद अच्छा रह रहे हैं। तो ये रोल मॉडल होता है, ये इससे सीखते हैं। अगर हम अपने में वो करेक्टरिस्टिक्स डालना शुरू कर दें जो हम स्टूडेंट्स में डालने की कोशिश कर रहे हैं, पहले हम वो खुद प्रैक्टिस कर लें तो हमारे स्टूडेंट्स में वो खुद ब खुद आ जाएंगे। एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन क्लास, क्लास में सारे के सारे स्टूडेंट्स को एंगेज करें। एंड द इफेक्टिव टीचर्स आर मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशन स्पीकर होना बहुत ज़रूरी है एक टीचर का, क्योंकि मोटिवेशन स्पीकर नहीं होगा तो स्टूडेंट डीमोटिवेटेड ही रहेंगे। मोटिवेट करना स्टूडेंट को बार बार करना पड़ता है, और जब स्टूडेंट्स को आप मोटिवेट करते हैं तो वो स्टूडेंट समझ जाते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, और वो फिर वेल परफॉर्म करते हैं। स्ट्रेटजीज़ हैं गुड क्लासरूम मैनेजमेंट की, वही स्ट्रेटजीज़ हैं जो इफेक्टिव टीचर्स हैं वो गुड क्लासरूम मैनेजर्स भी होते हैं, क्योंकि वही स्ट्रेटजीज़ अपनाते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी ग्रीटिंग है कि आप अपने स्टूडेंट्स को ग्रीटिंग्स करें। आप जब क्लास में एंटर होते हैं तो हम यूजुअली ये कहते हैं, टीचर्स जो हैं वो ट्रेडिशनल टीचर्स यही हैं कि अगर वो क्लास में गए हैं, उनके स्टूडेंट उनके एहतराम में खड़े नहीं, उनसे सलाम नहीं ली, तो दे गेट जस्ट टू मच फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगी या अनोइंग हो जाएंगे, और वो ये कहेंगी कि आपने हमसे सलाम नहीं ली, आपको तरीका नहीं है, दिस एंड दैट। तो दिस इज़ नॉट अ गुड वे। आप क्लास में जाएं, अगर स्टूडेंट ने आपसे सलाम नहीं ली तो आप जाएं, आप अस्सलाम वालेकुम के, अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है आप सबके, हाउ आर यू ऑल, ठीक हैं। जब आप ये कहेंगे तो ये क्लासरूम के स्टूडेंट्स को अटेंटिव कर देगा, वो स्टूडेंट आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। प्लान प्लान एंड प्लान, प्लानिंग करें, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करें। हमारे पाकिस्तान में
टीचिंग प्रोफेशन जो है इतना अंडररेटेड क्यों है? क्योंकि जो हमारे टीचर्स हैं वो सिर्फ 8 से 2 के टीचर्स हैं। वो 8 बस ये कहते हैं कि हम 8 बजे स्कूल गए, हम 2 बजे स्कूल से आ गए एंड दैट्स ऑल। हमारी टीचिंग की जॉब भी पूरी हो गई और हमारे फ़र्ज़ भी अदा हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। आप कंटिन्यूअसली अपने ज़हन में प्लानिंग रखें। अगर आपको कोई स्टूडेंट एनॉय कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो आप उसके बारे में स्ट्रैटेजीज़, टेक्निक्स सोचें, एक्टिविटीज़ सोचें ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन है, तो उसने ये कहा था कि इफ़ आई हैड एन आवर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, आई वुड स्पेंड 55 मिनट थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम एंड 5 मिनट थिंकिंग अबाउट सॉल्यूशन। कि अगर मुझे एक प्रॉब्लम दी जाती है तो मैं 55 मिनट्स लगाऊंगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उसके सॉल्यूशन को जो है वो निकालने में, उसके बारे में सोचने में, प्लान करने में, और सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे और मेरा सॉल्यूशन निकल आएगा। तो प्लानिंग इज़ द बेसिक थिंग जो बहुत सारे टीचर्स इग्नोर कर देते हैं। नोट्स ऑफ प्रेस, अपने स्टूडेंट को प्रेस करते रहें, बार बार प्रेस करते रहें। आपके स्टूडेंट ने कोई टेस्ट अच्छा नहीं दिया तो आप उसको पूरी क्लास के सामने डांटने के बजाय आप उसके टेस्ट पे उसके लिए कोई प्रेजिंग नोट लिख दें। ऐसा करें। ये एक्टिविटी करने से स्टूडेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और स्टूडेंट सोचते हैं इस चीज़ के बारे में कि हमारे टीचर ने हमें पूरी क्लास के सामने एम्बेरस नहीं किया, बल्कि हमारे टीचर ने फिर भी हमें मोटिवेट किया है, हमें सराहा है। तो वो स्टूडेंट खुद ब खुद जो है वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। सेट रूल विद स्टूडेंट कंसर्न, जैसे हमने पहले भी कहा कि जो इफेक्टिव टीचर्स होते हैं वो रूल्स सेट कर देते हैं। गिव स्टूडेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिस्पेक्ट एंड केयर। जब आपके स्टूडेंट्स आप अपने स्टूडेंट्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच देंगे, वो आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। वो समझेंगे कि ये टीचर जो है ये हमारा केयर टेकर है, ये टीचर हमारा गार्डियन है, हमने इससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है। बल्कि वो मज़ीद प्रॉब्लम्स में पढ़ते जाएं। जब वो डरे रहेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाएंगे। उनसे कोई गलती हो गई है तो वो मज़ीद गलतियाँ करते जाएंगे। तो जब वो आपसे प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे, आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, तो क्लास में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। रिस्पेक्ट दें, केयर दें। स्विच एक्टिविटीज इफ स्टूडेंट्स गेट आउट ऑफ द कंट्रोल। अगर स्टूडेंट आउट ऑफ द कंट्रोल हो रहे हैं तो आप एक्टिविटीज़ करें। प्रॉपर काउंसलिंग करें। मेंटेन आई कांटेक्ट मेंटेन करें स्टूडेंट्स के साथ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आप लेक्चर दे रहे हैं, ये कहा जाता है कि एन इफेक्टिव टीचर इज़ वन दैट इज़ बुकलेस इन द क्लास, कि जो बुक से देख के स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा। क्योंकि आप बुक से देख के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, देख के कॉन्टीन्यूसली बुक पे ही ध्यान है, तो आपका स्टूडेंट के साथ आई कांटेक्ट नहीं रहेगा। आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट क्लास में किस तरह से बिहेव कर रहा है। आप लेक्चर दें, उनको एक्टिविटीज़ के ज़रिए इन्वॉल्व करें, उनके साथ प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करें। जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं तो स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि जो टीचर है ये हमारे ऊपर प्रॉपर जो है एक नज़र रख रहा है। सो हमने डिसिप्लिन रहना है क्लास में। काउंसलिंग करें प्रॉपर स्टूडेंट्स की। एक्टिविटीज़ ऐसी यूज़ करें जिसमें स्टूडेंट की लर्निंग हो और वो इन्जॉय भी करें। क्यूरियोसिटी पैदा करें, क्रिटिकल थिंकिंग। जब आप अपने लेसन में क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करते हैं, क्यूरियोसिटी पैदा कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स क्यूरियस हो जाते हैं। वो नेक्स्ट डे इंतज़ार करते हैं कि ये टीचर आएँ, इन्होंने आज हमें कोई नई चीज़ बतानी थी, इन्होंने हमें कल कोई क्वेश्चन दिया है, आज हमें इन्होंने उस क्वेश्चन का आंसर बताना था कि ऐसा क्यों होता है। तो वो क्यूरियस हो जाएंगे, वो आपके लेक्चर का इंतज़ार करेंगे। नोटिस एंड कमेंट, ये चीज़ भी ज़रूरी है कि आप स्टूडेंट को प्रॉपरली नोटिस करते रहें, उस पर कमेंट करते रहें। कि जैसे आप यू आर लुकिंग टू मच एनर्जेटिक टुडे, यू आर लुकिंग टू मच नाइस टुडे, यू आर लुकिंग सो फ्रेश। तो मुझे लगता है कि आप क्लास में अच्छा परफॉर्म करोगे। तो जब आप ये कमेंट करेंगे तो स्टूडेंट जो है इनमें कॉन्फिडेंस आएगा। व्हेन एंड देन, व्हेन देन एक स्ट्रैटेजी है। व्हेन यू टेल मी योर प्रॉब्लम देन आई विल सॉल्व इट। तो ये एक व्हेन देन स्ट्रैटेजी अपनाएं क्लास में कि आप स्टूडेंट्स से प्रॉब्लम सुने, उन्हें एतमाद में लें, उन्हें कॉन्फिडेंस में लें कि आप मुझे प्रॉब्लम अपनी बताएं, मैं इसे सॉल्व करूंगी, हम मिलके ये सॉल्व करेंगे। तो जब ये आप करेंगे, स्ट्रेटजी अपनाएंगे, तो फिर जो है जो जितने मर्जी अनोइंग स्टूडेंट है वो क्लास में ठीक होगा। टाइम और स्ट्रेटजी, टाइम और स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को टाइम दें कि स्टूडेंट्स अगर कोई स्टूडेंट है, वो क्लास में बहुत ज़्यादा थका हुआ है, वो टायर्ड फील कर रहा है, या वो क्लास में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, आप उस स्टूडेंट को थोड़ा सा टाइम दें। उस स्टूडेंट को बोलें कि जस्ट गो आउट एंड गेट फ्रेशन अप।
आप ज़रा थोड़ा सा चक्कर लगा के आएँ बाहर, आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाएँ, आप आएँ, फिर हम ने अपना लेक्चर दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, आप रिलैक्स हो जाएँ। जब आप स्टूडेंट को ये टाइम और स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, स्टूडेंट्स को टाइम देंगे, तो फिर स्टूडेंट्स में जो है ये ओनरशिप आएगी और स्टूडेंट्स में ये कॉन्फिडेंस आएगा और स्टूडेंट्स जो हैं फ्रेश फील करेंगे। रिवार्डिंग, बार बार ये बात की है कि स्टूडेंट को रिवार्ड करें, स्टूडेंट को मोटिवेट करें, उनके लिए प्रेजिंग नोट्स रखें, उनके लिए छोटे छोटे इनाम रखें। स्पेशल ट्रीटमेंट, इम्प्रूव स्टूडेंट सेल्फ इस्टीम। आप स्टूडेंट के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमें नहीं पता, लाइक वी हैव 40 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, so we are dealing with 40 mindsets, actually we are dealing with 40 different societies. So how can we manage the class with one mindset? How can we manage 40 mindsets with one mindset? यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप स्टूडेंट्स को उनकी सरफेस जो है वो प्रॉब्लम्स को ना समझें, उनकी ग्राउंड रियलिटीज़ में जाएं, डीप जाएं कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास में मिसबिहेव कर रहा है तो इसके पीछे क्या रीज़न है। हो सकता है कि उस स्टूडेंट को घर में जो है वो इस तरह से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो जब आप उस स्टूडेंट को स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे तो वो स्टूडेंट जो है वो ओनरशिप फील करेगा, वो स्टूडेंट स्पेशल फील करेगा, और जब वो स्टूडेंट स्पेशल फील करेगा तो वो स्टूडेंट फिर अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देगा। कॉम्प्लीमेंट एंड अप्रिशिएट, नोइंग स्टूडेंट कंसर्न, कि स्टूडेंट के कंफर्ट जोन को जाने कि स्टूडेंट किस चीज़ में कंफर्टेबल है वो उसको करने दें। ज़रूरी नहीं कि क्लास में सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करें और एक जैसा परफॉर्म करें। कुछ जो हैं वो स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर्स होते हैं। प्रॉब्लम क्रिएट तब होते हैं जब हम स्लो लर्नर्स और फास्ट लर्नर्स को इकट्ठा लेके चलते हैं, जब हम उन्हें एक जैसा ट्रीट करते हैं। तो जब आप उन्हें एक जैसा ट्रीट नहीं करें, एवरी स्टूडेंट हैज़ इट्स ओन कंफर्ट जोन, आप उनके कंफर्ट जोन देखें। जब आप उनके कंफर्ट जोन्स को समझेंगे, उन्हें उसके मुताबिक लेके चलेंगे, तो फिर स्टूडेंट जो है वो क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई योर स्टूडेंट्स आर मिसबिहेविंग। आपके स्टूडेंट क्यों मिसबिहेव कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या उनको घर में कोई प्रॉब्लम है, क्या उनको मेंटली कोई प्रॉब्लम हुई है, आप इसके बारे में जानें। जब आप ये जानेंगे इन प्रॉब्लम्स को, तो आपके स्टूडेंट जो हैं वो आपको समझेंगे, आप अपने स्टूडेंट्स को समझे पहले, तो फिर वो क्लासरूम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। पनिशमेंट लीस्ट स्ट्रेटजी है, लीस्ट इफेक्टिव। जब हम स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो हमारे पास हाईली इफेक्टिव, मीडियम इफेक्टिव और लीस्ट इफेक्टिव आती हैं। तो लीस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी में पनिशमेंट आती है, इसलिए मैंने इसे सबसे एंड पे लिखा है कि आप पनिशमेंट किसी भी तरह की हो, आप पनिशमेंट जैसे हमने बात की कि आप उनको ये तो लीस्ट क्या, ये तो पनिशमेंट होनी नहीं चाहिए ना कि आप अपने स्टूडेंट्स को डिस्करेज कर रहे हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को स्कॉल्ड कर रहे हैं, आप अपने स्टूडेंट को फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, और ये पनिशमेंट तो बाहर ही रहा है, ये पनिशमेंट नहीं है। आप दूसरी पनिशमेंट्स उन्हें दें, लेकिन वो भी पनिशमेंट ऐसी पनिशमेंट हो कि वो कॉन्टीन्यूस पनिशमेंट नहीं हो, बल्कि आप उनको मोटिवेट भी करते रहें। फिर आप कभी कभी उन्हें पनिश करेंगे तो वो स्टूडेंट जो हैं वो ये फील करेंगे कि ये हमारी फ़ायदे के लिए है। सम डूज एंड डोंट्स हैं जो हमें करने चाहिए और नहीं करने चाहिए क्लास में। ये क्लासरूम मंत्रा है एक। डोंट्स को मैंने रेड साइन से लिखा है, रेड बोल्ड लेटर से। क्यों? क्योंकि ये जो हम टीचर्स करते हैं ये बेसिकली रेड सिग्नल्स ही होते हैं, अलार्मिंग सिग्नल्स होते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट में। सो डूज में क्या है कि आप रूटीन्स और रिचुअल्स यूज़ करें, अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि यू केयर अबाउट दैम, डू शो योर स्टूडेंट दैट यू केयर अबाउट दैम, डू इंक्रीज सेल्फ स्टीम विद प्रेज एंड इंकरेजमेंट, आप उनकी सेल्फ स्टीम को बढ़ाएं प्रेज और इंकरेजमेंट के साथ। डू ट्राई टू बी अ रोल मॉडल, आप रोल मॉडल बने। स्टार्ट ईच डे इन अ हैप्पी मूड, हैप्पी मूड में हर दिन शुरू करें। अपनी जो भी बॉर्डम है, अपनी जो भी टायर्डनेस है, अपने जो भी घर के मसले हैं उन्हें घर में रखें, और जब आप क्लास में एंटर हों तो यू हैव टू बी इन अ हैप्पी मूड। जब आप हैप्पी मोड में होंगे तो आपके स्टूडेंट्स भी हैप्पी मोड में रहेंगे। कीप अ बैग ऑफ ट्रिप अप योर स्लीव्स, कि हमेशा अपने पास बैग ऑफ ट्रिक्स रखें, एक्टिविटीज़ रखें, अपने माइंड में क्रिटिकल थिंकिंग आइडियाज़ रखें। जो ही आपके स्टूडेंट लेक्चर से थोड़ा सा बोर हो जाएं तो आप अपने स्टूडेंट को जल्दी से एक्टिविटीज़ पे स्विच कर दें। तो जब आप एक्टिविटीज़ पे स्विच करेंगे तो क्लासरूम मैनेज रहेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई योर स्टूडेंट्स आर मिसबिहेविंग, के प्रॉब्लम्स के पीछे जो प्रॉब्लम्स हैं उनके पीछे क्या रीज़न है उसको जानें। कुछ डोंट्स हैं
Don't insist that you're right. We are not always right and we cannot be always right. So आप ये इंसिस्ट नहीं करें स्टूडेंट को कि आप ही ठीक हैं और स्टूडेंट आपके गलत हैं. जब आप ये करेंगे तो ये स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करेगा. ये स्टूडेंट जो है वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और क्लासरूम मैनेज नहीं होगा. बी डोंट बी सरकेस्टिक. सरकेस्टिक नहीं हो. आप स्टूडेंट्स को तंज नहीं करें, उनके साथ तंज से अल्फाज ना बोलें. जब आप ऐसा करेंगे तो ये भी उनके लिए इनफेक्टिव होगा. डोंट इंसल्ट और एम्बेरस योर स्टूडेंट्स. अपने स्टूडेंट्स को एम्बेरस नहीं करें बाकियों के सामने, इंसल्ट नहीं करें. डोंट कंपेयर योर स्टूडेंट विद अदर स्टूडेंट. आप उनको कंपैरिजन ना करें क्योंकि कंपैरिजन किसी को भी पसंद नहीं है. हमें नहीं पसंद कि हमें किसी के साथ कंपेयर किया जाए, हमारे कोलीग्स के साथ. तो फिर स्टूडेंट्स को क्यों ये पसंद होगा कि उनको दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर किया जाए. क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना लेन है, हर स्टूडेंट का अपना माइंड सेट है, हर स्टूडेंट का अपना कंफर्ट जोन है. डोंट आस्क योर स्टूडेंट टू फॉलो द रूल एंड नॉट फॉलो इट योर सेल्फ. आप अपने स्टूडेंट को तब तक नहीं कह सकते रूल फॉलो करने के लिए जब तक आप खुद रूल फॉलो नहीं कर रहे. आप रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आपके स्टूडेंट भी नहीं करेंगे. डोंट यूज टेंस और एंग्री बॉडी लैंग्वेज. अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखें कि स्टूडेंट खुश रहें. आप हर टाइम उन पर शाउट करेंगे, आप नाराज़ रहेंगे, टेंस रहेंगे, तो इससे भी क्लासरूम मैनेज नहीं होगी. सो देर आर रेफरेंसेस फ्रॉम विच आई कलेक्टेड माई डाटा. यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया में एंड इन तुर्की में ये रिसर्च की गई है, जहाँ से 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है लर्निंग टीचिंग एंड एजुकेशन लीडरशिप में. वहाँ पर जो है वो रिव्यू दिया गया रिसर्च का क्लासरूम मैनेजमेंट में तुर्की में. वहाँ से आई कलेक्टेड माई डेटा फ्रॉम जॉर्ज लुकास एजुकेशनल फाउंडेशन है, इडियोटोपिया, साइंस डायरेक्ट जहाँ से रिसर्च पेपर्स हैं बहुत ज़्यादा क्लासरूम मैनेजमेंट पे कलेक्ट किए. एंड एट द एंड आई सर्च माई डेटा फ्रॉम यूट्यूब. So these are the references. At the end there are some question and answers that you can ask in the comment section. Thank you so much.